ಎರಡನೇದು ತಾಯಂದ್ರ ಸಭೆ, ಮೂರನೇದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ. ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ತಾಯಂದ್ರ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ತಾಪಡೆ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಂದ್ರಿ ಗುರುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕವಳ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಬನ್ನಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಸಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ನೀವು ದಿವಸ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿ ದಿವಸಾನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೊಗರಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಊರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಊರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇದರ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀವು ಇದೇ ಊರಿನವರೇ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನನಿ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ತಾಪಡೆ ಅವರು ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ನಾವೇನು ಸಭೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಹೌದು, ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನೀವು ಹೌದು. ಈ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ, 2 ಕೈಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಕೇವಲ ಬಾಲಕನ ನಡೆದಂಥ ಪಾಲಕ, ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಪಟ್ಟಂಥ ಮಸ್ತಕ, ಈ 5 ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಹಚ್ಚಿರೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಅವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾವೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೋತ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಟಿವಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಅವನು ಸಹಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಅವರು 4 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नमस्कार जी। आपके बच्चे इधर गवर्नमेंट स्कूल में सीखते हैं, टीचर तो सब बहुत अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई का वगैरह पूछते हैं कि नहीं पूछते? पूछना चाहिए। आप पूछते हैं तो आपको क्या समस्या आती है, अड़चन है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पूछना चाहिए, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्रश्न उत्तर तुम सवाल वो जवाब देते हैं. सवाल पूछो, हिंदी में पूछो, मराठी में पूछो. ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಓದ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. अभ्यास करते नहीं। घर पे नहीं काम करता। अभी आपको मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ कि अपने यहाँ पे उड़ीसा राज्य के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो हार्ट के सर्जन हैं। तो वो बहुत छोटे से गांव में से आते हैं और उनका प्राइमरी स्कूल जिधर था वो उनके गांव से 8 किलोमीटर। उनके माँ बाप अनपढ़ थे, नहीं पढ़े थे, और वो उनकी खेती बाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो दूसरों के खेत में जाके काम करते थे। इतना उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका नाम है डॉक्टर रमाकांत पांडा। वो भारत के बहुत बड़े हार्ट के सर्जन, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टरों के, प्रधानमंत्रियों के उन्होंने ऑपरेशन किए। तो कहने का मतलब क्या है
क्योंकि मेरे माता पिता को ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन 8 किलोमीटर तक रोज उनकी माँ उनको साइकिल से या ऐसे चल के स्कूल छोड़ने को जाती। दूसरा, जब वो स्कूल से वापस आते थे तो उनको पूछती थी क्या पढ़ाया, होमवर्क दिया कि नहीं, रपट दिया कि नहीं। सुनो तो सही मेरी पूरी बात। तो उनको आता कुछ नहीं था, लेकिन वो रोज पूछती थी और फिर किया कि नहीं करके वैसा पूछती थी। और उनके गांव में रविवार को वो जो पोस्ट ऑफिस है, आज से 30-40 साल पहले की बात है, तो इतना ज़्यादा अखबार वगैरह भी नहीं थे, तो वो उनके गांव के पोस्ट ऑफिस में जाती थी और वो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को बोलती थी कि डॉक्टर के संबंधित अगर कोई न्यूज़ है तो वो मेरे को आप देना कट करके, और वो उसकी फाइल में रखती। वो माँ ने सपना देखा था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, उसको पढ़ाई का पूछती थी। तो आप पूछते जब रहेंगे उनके लिए, आप अपने बच्चों के लिए जब आप सपना देखेंगे तो निश्चित वो उसका उपयोग होगा। आपका काम पूछना है, वो अपने आप पढ़ेंगे, आपको आए न आए, आपको समझे न समझे, बट उसको एक धाक रहती है। तो जब एक इंटरव्यू में वो इतना बड़ा डॉक्टर बनने के बाद उसको पूछा गया था कि आप जो सक्सेसफुल बने, आप जो इतना आगे बढ़े अपने जिंदगी में, तो उसका रहस्य क्या है? तो बोले मेरी माँ मेरे को जो पूछती थी इस डर से मैं पढ़ता था, और उसने मेरे लिए सपना देखा था, वो मेरे लिए क्लिपिंग पेपर का कटिंग बना करके रखती थी। उसको तो पढ़ने को नहीं आने वाला था, लेकिन वो मुझको पढ़ने के लिए देती थी कि ये इतने बड़े डॉक्टर है, ये ऐसी न्यूज़ है, ऐसा शोध कर रहा है, ऐसा सब। तो अपने बच्चों को आपको प्रेरणा करना आपका काम है। जो जैसा मुमकिन होता है, जैसा शक्य होता है, आपने उनको प्रेरणा करना चाहिए। एक डॉक्टर है, जैसे अपने पास कैसा है, कुछ भी नहीं समझना है तो वो बच्चे को डांट देते, फटकार देते, धो देते, उसको बांध देते, उसको परीक्षा कर देते, एक टाइम का खाना दे देते। पर पालकत्व बोले तो पेरेंटिंग एक अलग तरीके से की जा सकती है। तो उसकी एक बहुत फेमस डॉक्टर की कथा है, वो फॉरेन के डॉक्टर, उनका नाम डॉक्टर बेन कार्सन। तो उनकी क्या आदत थी, वो बेन कार्सन की, जब वो छोटे थे तो वो ऐसे चाकू छुरी से सबको ऐसा घात करते थे, ऐसा किसी को भी ऐसा घात करने का, ऐसा मस्ती में। तो फिर उसकी, अभी आप उनके जगह पे होते, उनकी माँ के जगह पे क्या करते आप, तो पकड़ के बजाते हो, क्या समझ में नहीं आता, पागल है, बुद्धू कहेगा, ऐसा करके बोलते। लेकिन उनकी माँ ने क्या किया, थोड़ा सा अलग तरीके से समझा। उनकी माँ ने क्या किया, उसको लेके बैठा, उसको बोला कि ये जो छुरी है, इससे अगर तो ऐसे लोगों को नुकसान करेगा तो लोगों को घात हो जाएगा, कोई मर सकता है, किसी को जख्म हो जाएगा। लेकिन अगर तू इसका सही से उपयोग करना सीख गया तो तू इससे जिंदगियां बचा सकता। और वो दुनिया का पहला ऐसा सर्जन बना जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, शरीर से जो जुड़े हुए होते हैं, सर जुड़े हुए, आपने सुना होगा पीठ जुड़े हुए, पेट जुड़े हुए, तो उनको सिर्फ जुड़े हुए बच्चों का उसने सबसे पहले बार सर्जन किया। तो बस बताने का तरीका अलग था, वही फटका देके कुछ नहीं, तेरे को कुछ नहीं आता है, पागल है, छोड़ दो इसको, ऐसा करके नहीं होता। उसको क्या समझा कि ये छुरी का अगर तो अच्छे से उपयोग करना सीखेगा तो बहुत लोगों की जान बचा पाएगा, उनके लोगों की जान बचे, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्जरी। तो हमारा जो बात करने का बच्चों का तरीका है, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता और टीचर ये रोल मॉडल होते हैं, उनके पास देखते हैं। आप सुपारी पान पराग मावा खाएंगे, आपके घर में कोई खाएंगे तो वो बच्चे को आदत पड़ेगी, उसमें कोई व्यसन करेगा, गलत खाएगा तो उसको आदत पड़ेगी। लेकिन आप अगर भाग रखेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, डिसिप्लिन में बच्चों को रहेंगे, तो वो निश्चित आगे बढ़ेंगे। तो आपका काम नहीं कहना वो सुधरते, 100% सुधरते, ये अनुभव है। नहीं, वो पटाखे उसको करवाने को आना चाहिए। जैसे आप, अगर बच्चा बीमार पड़ गया, अब दवाई कड़वी है, लेकिन आप उसको बहला करके, फुसला करके, चॉकलेट दे करके पिला देंगे, नहीं पिलाते, वो दवाई अच्छी है, पी, ये ले, ऐसा करके पिएगा क्या? नहीं, आपको अंदर से आग लगती, दिल में मेरा बच्चा ठीक होने के लिए मैंने उसको दवाई पिलानी चाहिए, तो आप सब कोशिश करते, मिठाई देके, चॉकलेट देके, फुसला के, गेम देके, मदर देके उसको दवाई पिला देंगे। तो आपको अपने बच्चे के लिए अगर है मन में भाव कि मेरे को इसका अच्छा होना ही चाहिए, कैसा भी रहे, तो आप उसके लिए सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे, सब प्रकार से उसको चल इतना करके दिखाओ, फिर मैं तेरे को ये इनाम दूंगी,
छोटी छोटी चीजें ऐसा। तो इस तरीके से कि हम सच्ची बात बोलते हैं पर्याप्त नहीं, वो सच चलने के लिए क्या क्या मेहनत हमको करना पड़ता है वो भी हमारी जवाबदारी है। आपको पता है पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो फिर आपने वो बोलना चाहिए सर तू तेरी पढ़ाई लिखी बट मैं मेरी पढ़ाई लिखी। आपकी कोई धर्म ग्रंथ की किताब है या कोई दूसरा आप कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं, मैं मेरा काम करते बोलेगा तू तेरा काम कर, मेरा काम भाजी तोड़ के सब्जी तोड़ के घर में स्वयंपाक करने का है, खाना बनाने का, मैं मेरा काम करती चल तू तेरा काम कर। ऐसा जो आपको आता है वो लेके आप उसको साथ में लेते तो निश्चित वो करते हैं। कर बोलने के बाद वो नहीं करते, आपको लेना साथ। और जैसे बड़े होते हैं तो उनको समझ आ जाए। और कुछ खाने के ऊपर से ಪೋಷಕಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಪೋಷಕಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದೊಳಗ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಜವಾರಿ ಆಹಾರ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಕೈತೋಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾಜಾ ಆಹಾರ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೋಷಕಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಮಿಕಲ್, ಯಾವುದೇ ತರಹದಲ್ಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು? सबका आहार में भी केमिकल है, जवाब नहीं है, तो हाइब्रिड है। हम पोस्ट का हमको पैसा लगता है, पैसा मिलता है, कैसे कर सकते हैं उसको? वेरी गुड। देखो दो चीजें, एक हाइब्रिड और एक केमिकल, ये अलग चीज है। जैसे छोटा फल होता है उसको बड़ा करने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं, वो गलत है। लेकिन जो बीज मिलता है वही ऐसा है कि उससे डायरेक्ट फ्रूट जो आ रहा है वो बड़ा है, वो हाइब्रिड है एक्चुअली। समझ में? हाइब्रिड और केमिकल का फर्क समझो कि आपने बीज लगाया, आप बोलते हैं हाइब्रिड बीज है, बीज लगाया और बड़ा फ्रूट मिला तो हाइब्रिड है, वो अच्छा रहता है, उसका गुण बढ़ाने के लिए ही उसको हाइब्रिड बनाते हैं। तो हाइब्रिड इज नॉट बैड, ओके। बट जो केमिकल डालते हैं, जैसे आज बनाना केला, उसका आज ग्रीन कलर है, वो पानी में से निकाला आज येलो कलर, वो गलत है। नेचुरली होना और उसको जो लैबोरेटरी में हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उसको हाइब्रिड बनाते हैं, तो उसको बीज में ही मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसका जो फल आता है वो ओरिजिनली नेचुरली बड़ा आता है, वो करेक्ट है, वो अच्छा है, वो हमारे लिए फायदे का, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो जो चीज हमारे खाने में नॉर्मली नहीं है तो वो चीज भी हमको उसमें से मिलती है, ऐसा उसमें हाइब्रिडाइजेशन, ये फर्क समझो। दूसरी बात कि अभी आप देखते फवार नहीं करते, कीड़ा नहीं लगने से, तो वो आपको प्रिवेंट करने के लिए जरूर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी भाजी पाला सब लाते हैं उसको अच्छे से घर में धोने का तो फिर उसको आप यूज कर सकते। समझ में आया? तीसरी बात ये है कि आप खुद भी इसको घर में कर सकते हैं, जिसको हम टेरेस फार्मिंग या फिर होम गार्डनिंग बोलते हैं। घर के आजू बाजू में जगह रहता है, बड़े बड़े कुंडे, कुछ भी नहीं है तो टूटे प्लास्टिक का कैन रहता है, वो यूज करने का। ड्रम रहता है ना, उसको ऐसा खड़ा कट करने का और उसको दो भाग में करना, कितना बड़ा, उसमें मिट्टी डाल के जो बीज आपका है, जो आप मतलब घर में इजीली आप बना कर सकते हैं और यूज करते हैं। जैसे टमाटर है, हमने ये किया था कोविड में जब छुट्टी था तो टेरेस के ऊपर ऐसा कुंडी में मिट्टी डाल करके सब झाड़ लगाने का, भिंडी लगाया हमने, उसके बाद टमाटर लगाया, उसके बाद हमने बैंगन लगाया, तुरई लगाया, बहुत सुंदर आता है, बहुत इजी है। और इसके दो फायदे, क्या फायदा है? एक जब आप खुद लगा के उसमें आता है तो अच्छा लगता है और वो एकदम नेचुरल है, आपको खातिर देता है। दूसरा कि आपको सॉइल थेरेपी, मतलब आपका मिट्टी के साथ में संपर्क आता है तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आपने खुद लगाया हुआ झाड़ उगता हुआ देखते तो आप कभी भी आप नेगेटिव में नहीं जाएंगे, कभी भी आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी भी उदास नहीं हो जाएंगे। अब आप जब उगते हुए झाड़ को देखते हो तो फटाफट उगते छोटे झाड़ होते हैं, वो बहुत अच्छा है। और YouTube के ऊपर सब टेक्निक है, क्या खाद वापरने का, शेड वापरने का, कितना वापरने का, और क्या क्या नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या क्या है, वो सब बहुत इजीली YouTube पे सब अवेलेबल है, सब भाषा में, कन्नड़ा में भी है। तो कोकोपीट है, ये वो सब आप घर में बना सकते हैं, तो बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं। और रोज आधा घंटा 15-20 मिनट आपने ये काम करना चाहिए, तो उससे ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी मिलता है,
पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, दूसरा आपका इम्यूनिटी अच्छा होता है, तीसरा आप जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, चौथा आपको अच्छा खाने को मिलता है और आपको अश्योरिटी है कि मैंने होगा ये अच्छा ही है। और पांचवी बात कि आपको फार्मिंग या गार्डनिंग का बेसिक नॉलेज मिलता है कि इतने दिन में झाड़ ऐसा आता है, जो आप किताब में पढ़ते ना सीड का जर्मिनेशन, तो आपको सब दिखता है। आपको किताब में पढ़ने के बाद जब आप देखते हो तो आपको पक्का हो जाता है, तो फिर आप एग्जाम में बिना पढ़े बिना लिख सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आता है। आप रोज देखने का कितना होगा, तो थोड़ा सा फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। मेरे को पहले बार पता नहीं था, तो मैंने फ्लावर्स को प्लग कर दिया। मेरे को बता रहे बुद्धू फ्लावर का एक फ्रूट होता है ना, तो फ्लावर प्लग कर दिया तो फ्रूट कैसा आएगा। तो ये हमने 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में सीखा था, बट वो फूल बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ध्यान में आता है कि फ्लावर तोड़ने से मतलब नहीं, फ्लावर नहीं आगे फ्रूट बनता है, वो बना है ना नीचे डायग्राम पोलर डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये सब आपको सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब ये आप अगर आप साइंस टीचर प्रिंसिपल सर के साथ बात करके आप ये आपके स्कूल में भी कर सकते हैं, साइड में जाकर बहुत बहुत हाँ, तो ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, और वही सब लेके एक महीने में एक बार उसे सामूहिक भोजन कर सकते हैं आप लोग, तो आपको थोड़ा हेडेक ही होगा, पर सब बच्चे एक साथ में आगे लगे। हाँ, बट वो स्टूडेंट्स ने एक महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार खुद से पूरा बनाना है, जैसे आप सब टीचर्स के गाइडेंस में बहुत अच्छा होगा। ओके ಮತ್ತೆ ಸರ್ यस ಸರ್ ನಾವು ಓದಾಳಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? वो पढ़ने के वक्त नींद आती है, बहुत है तो नींद आता है, ಇಲ್ರಿ प्रश्न में उतरे ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರು कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या नींद करें? आता है। नींद आता पढ़ने है, के वक्त कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल सिंपल चीजें। एक तो अच्छा खाना चाहिए। जब आपका खाना अच्छा है, अभी देख रहे हो मैं इधर सुबह 9 बजे मेरे घर से निकला, ट्रैवलिंग करके मेरा उधर काम किया, वापस इधर आया, अभी वापस जा रहा हूं। मेरे को नींद आ रही, मैं सब थका हूँ, बिल्कुल भी एकदम फ्रेश। तो मैं सबसे सीक्रेट क्या है पता है, अपनी ज़्यादा कच्चा खाना खाना, कच्चा खाना। और जब पढ़ना है ना तो उस टाइम पे दाल चावल ये नहीं खाना, उससे नींद आता है। भाकरी भाजी ये खाना चाहिए क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है और फटाफट एक्टिवेट होता है। और ये दिमाग देखो, हंग्री बोले तो भूख लगना और खाली पेट है ना, ये दो अलग चीज है। खाली पेट मतलब क्या, खाना खाया 2 घंटे में वो नीचे चला गया, ये खाली पेट हो गया। लेकिन 6 घंटे बाद मेरे को भूख लगी, तो भूख लगी तभी खाना, टाइम हो गया करके खाना खाना ऐसे बनता है। और खाना खा के कभी पढ़ाई बनती है। और जब पढ़ाई करते नींद आता है, एक लविंग, अगर आपके बॉडी को सूट होता है तो लविंग इलायची मुंह में रखते हैं, उससे नींद नहीं आता, या फिर कुछ जैसे आंवला वगैरह वो उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा नींद आए जाके चल के आओ एक राउंड, नींद भाग जाए, ठंडे पानी से मुंह धो लो, नींद भाग जाए। ये छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा टाइम पढ़ना है वो करना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? अभी 2 पॉइंट मैं मेरी तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली बताता हूँ। आप जो खाना खिलाते बच्चों को, भी मैंने सेवगा देखा, अपने इधर बहुत सारी गलत बातें बताई गई है सेवगा के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, सेवगा में इतना तत्व है बोलने का काम। मतलब सेवगा ये धरती के ऊपर का अमृत है, तो आप हफ्ते में 1 बार 2 बार कंपल्सरी सेवगा का जो पाला होता है उसका बनाओ, वो बनाओ, अच्छा खाओ। हाँ, वो सेवगा बहुत अच्छा, उसका जो पाला है। और दूसरा आम होता है, तो आम का जो बीज होता है